Because when I see the in the past recording, so I find out some glitch like the my whole Windows is visible instead of the MySQL Workbench. Yeah, yeah, you can try after the session. So let's we started. We are also getting a late at 28. ठीक है, so आज start करते हैं. So in the last session we complete the sorting and the ordering, right? So you do that any practices? Not really. कहाँ पर आएगा? टीवी में आएगा. Sales. Just wait a minute. Laptop lecture quantity 10 5015. Watch six sixth watch. Price of the watch 300. Yeah. So I get your data. I share the data. Okay. So you just import it. So first you have to make the. Just wait a minute. Import into. Yeah. So I share the data in the group. So you can just easily copy it and run this in the script. ठीक है स्टार्ट करें हो गया डेटा सेट इंपोर्ट या जस्ट कॉपी द होल द कोड एंड पेस्ट इन द एसक्यूएल स्क्रिप्ट या
Once you're done, so let me know. Okay. So you first have to select your database, like use and select database where you need to save this table. Yeah, data. Okay. Done. So you make a table with the name of the cells. Okay, na? So okay. So today topic basically the subquery. So first we see the definition. So in a SQL, a subquery can be defined as a query embedded within another query. सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन ये है कि मतलब वो क्वेरी जिस क्वेरी को हम एक दूसरी क्वेरी के अंदर डिफाइन करते हैं and it is often used in the where having or from clause of a statement. Subquery are commonly used with the select, update, insert, and delete statement to achieve the complex filtering and data manipulation. So this is the basic and the subquery definition. So basically the funda is basically the subquery can be defined in the another query. Simple सी है ना ठीक है. So there are three types of subquery. The first is basically scalar subquery, and the second one is basically row based subquery, and third is really tabular subquery. ठीक है. हाँ, रो बेस्ड या मल्टी मल्टी रो सबक्वेरी. Tabular query, you can also say that the multi multi column subquery. So this is the so first basically we understand the independent subquery. So those query where the subquery is not need to there is a no need to depend on the parent query. So basically I give the some example of the scalar subquery. Here independent subquery. So here first use the DB and start from cells. Okay. So hmm, so here we need a average price of the product. So basically we select the product name, price from sales table, where price is greater than. Here we find our subquery. Select average price sales table. तो बेसिकली वो क्वेरी जो हमारी इनर क्वेरी को हम कहते हैं हमारी चाइल्ड क्वेरी कहते हैं. So we can call that subquery is a child query and the outer query is called basically parent query. So वो क्वेरी जहाँ पर हमारी चाइल्ड क्वेरी को या हमारी सब क्वेरी को बाहर वाली क्वेरी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है. So basically the our subquery is not dependent to the outside query. So it's called independent subquery. So here first we need to understand the independent subquery. So in which we learn the scalar subquery, multi-row subquery, and multi-column subquery. And after that we move to the correlated subquery. So basically the our subquery, which is basically child query, is depend on the outer query. It's all the parent query. So first we understand this independent subquery. No doubt.
Okay. हमें so basically here we extend the those product which is basically the price of the product basically is greater than the average all of the average product. So basically if we run this, so he basically this queries give the average. Okay, so हम इस वो सारे प्रोडक्ट फिल्टर आउट करने हैं जिनकी जो एवरेज प्राइस से ज्यादा जो प्राइस ज्यादा है. Okay, so that's why. So first, why we call this independent query? Because when we run this subquery individual, so it's give the result. Okay, and I give the some example, another example. Yeah, I do in the weekend batch. हाँ. So basically, basically this is the example of the correlated subquery, where the inner query is basically need to run basically depend on the outer query. So basically जो हमारी अंदर वाली क्वेरी है इसको रन होने के लिए आउटर क्वेरी के रिजल्ट की जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है. सो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द आवर कोरिलेटेड क्वेरी एंड व्हेन वी रन दिस बेसिकली गिव द एरर table db employees does not exist. And if we run this, first we have to select the database, use core. Yeah, and if we run this subquery independent, so basically it throw the error unknown column a department id. And when we run this the whole query, so basically give the result. So it's called a correlated query. Okay, so basically जो हमारी inner query या we can say that the sub query और basically इसको चाहिए रन करने के लिए outer query. Basically the sub queries depend on the outer query. And यहाँ पर जो हमारी independent query है, so basically there is a no need to depend on the outer query. So basically give the just wait a minute, use TV. Yeah. So there is a no need to depend on the outer query. Just give the individual value. And why we called the scalar subquery? Basically, the result of the subquery is basically give the single value. Yeah, single row. Okay. So I also ठीक है. So basically, first we understand scalar value. So when we run this our subquery, so it give the different kind of result. The first is basically scalar value. So the result of the subquery is basically a single row. Okay. Okay. And second one, the types of the result of the subquery is basically column wise, like the Geeta, Arun, Chwadeep. Result of the second query, basically a multi-row query. We can multi-row subquery. The result of the subquery is basically multi-row. So we get the result in the multi-row form. Arun, Ankit, Vishwadeep. And last one is basically tabular query. So we get the result in the tabular form like that. Okay. So today we're going to learn the scalar, multi-row subquery and the multi-column subquery. And after that, okay, and tomorrow we learn the correlated subquery, where the inner query are basically need to run for the outer query. Yeah, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल को समझते हैं. So here we first basically हमें यहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट चाहिए जिनका जो एवरेज जो वो हमें सारे वो प्रोडक्ट चाहिए जिनका जो एवरेज प्राइस से भी ज्यादा उनकी प्राइस है. ठीक है. सो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं जिनका जो प्राइस है वो एवरेज से भी ज्यादा है. एंड बेसिकली जैसे ही हम इसको रन करेंगे इंडिपेंडेंटली हम जैसे हमारी सबक्वेरी को रन करेंगे, सो वी गेट द एवरेज प्राइस. ठीक है. सो द एवरेज प्राइस बेसिकली
9156. And if we run this all the query, so basically it gives those products जिनकी जो एवरेज प्राइस जिनकी जो प्राइस है वो एवरेज प्राइस से ज्यादा है, जैसे 55,000, 25,000। ठीक है। सो बेसिकली आपको डिफाइन कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने ये हमारी जो सब क्वेरी है, वी आर यूज दिस सब क्वेरी विद द वेयर क्लॉज। आप इसको कहीं, आप इसको किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे सिलेक्ट हुआ, वेयर हुआ, हैविंग हुआ, क्लॉज हुआ, दिस काइंड ऑफ। ठीक है, तो मैं आपको एक और बता देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने ऊपर भी यहाँ पर बता के रखा हुआ है। हाँ, so it is often used in the where, having or from clause from the statement. Subquery are commonly used with the select, update or insert and delete statement to achieve the complex filtering and data manipulating. So we can use the subquery with this clause where, having, from, select, update, insert and delete. ठीक है ना? ठीक। एग्जांपल करते हैं हमारी सबक्वेरी के। आपके पास मूवीज वाला डेटा है, डेटा सेट है क्या? डू यू हैव मूवीज डेटा सेट? ओके, yes, I give the data set. Just wait a minute, I'll share the data set. So if you import this data set when I'm sharing in the group, so you just write the table name, basically movies, not in the parenthesis one. Okay. Then Vishwadeep, डन ना? ठीक है, ठीक है। Just wait.
ठीक है। गूगल में मूवीज वाला डेटा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास मूवी वाला डेटा है, इसमें हमारे पास मूवीज का नाम है, उसकी रेटिंग है, उसका जेनर है, एक्शन है, कॉमिक है या थ्रिलर है, द ईयर ऑफ द मूवी, रिलीज डेट, and the score. Like here is the rating of the, we can say the score या rating. Votes, how many votes the movie have, director or writer, star, country, budget, and gross, the total profit, and the company है ना, and the runtime. So basically, so here we need to find the, just wait a minute, just find the highest rated movie of 2000. हमें तो 2000 की जो मूवीज है, हमें उसमें से उसकी हाईएस्ट रेटेड मूवी निकालनी है। हाईएस्ट रेटेड जो स्कोर है, हाईएस्ट रेटेड निकालना है। हाईएस्ट रेटेड मतलब हम कह सकते हैं कि जो उनका मैक्सिमम स्कोर है। ठीक है, ठीक है। स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना है। ठीक है, तो जिसे जो हमारी यहाँ पर सब क्वेरी क्या होगी, सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी। हाँ, सो डेटा सेट, तो हमें वो सारी मूवीज चाहिए जो हाईएस्ट रेटेड है, जिनका स्कोर मैक्सिमम है। ठीक है ना। हम, so what we doing, we also use the where, we are using where the year is basically 2000, the score basically हमें स्कोर भी चाहिए। स्कोर इज इजिकल टू, किसके इजिकल टू चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए। तो हमारी सब क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट मैक्स, वी अप्लाई द इक्वेशन फंक्शन इन द ऑन द स्कोर कॉलम फ्रॉम आवर ओके, हाँ, फ्रॉम आवर मूवी टेबल। ठीक है, so this is the our sub query, or when we run this query, so basically it gives the single result, so that's why we called it as a scalar sub query। क्या होगा, अच्छा, okay, is we are not select the is, so when we run this query, so basically we get the result 9.3। so इसी में से मूवी है जिसका जो मैक्सिमम स्कोर है, उसका मैक्सिमम स्कोर 9.3 है। ठीक है ना। So here we also use the where condition, because in the sub query we all we get the like calculate the maximum score for whole movies, but we need the only 2000 movies. Here, here is basically 2000. So the basically the total the our full query is basically look like that. So we first select start from all column from movie table, and we here we give the condition where the year is basically 2000 and the score. So we basically calculate the maximum score from our 2000 movies. And when we run this query, so we get the result this movie। ये कोई सी मूवी है जिसका मैक्सिमम एक स्कोर दिया है, सबसे हाईएस्ट रेटेड स्कोर है। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, ये
ठीक है, ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। वी आर हम करेंगे नेस्टेड सब क्वेरी, मींस वी राइट क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या एग्जांपल हम करते हैं, वो हमें करना है कि कहाँ गया हमारा, find the highest rated movie among all the movies whose number of the votes are greater than the data set of average votes. So basically हमें सारी वो movies find out करनी है जिनका जो हाईएस्ट रेटेड भी है, और जिनका जो वोट्स है, जिनको जो ये हमारे यहाँ पर जो वोट्स मिले हैं वो हमारी पूरी मूवी के डेटा सेट के एवरेज वोट से ज्यादा है। ठीक है ना, द ऑल द मूवी whose number of votes are greater than to the data set of average votes। ठीक है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरी होगा क्योंकि अब सारे कॉम्प्लेक्स आएंगे, जैसे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और विंडो फंक्शन, अब सब कॉम्प्लेक्स हो आएंगे हमारे टॉपिक्स। ठीक है, अब हमें अभी आपको क्या लगता है कि अभी हम सबसे स्टेटमेंट लिखेंगे? इवन गेस, जैसे अभी इतना हमने कुछ करा है तो या नहीं, वी आल्सो गेट द मूवी his highest rated movie with the average votes of the whole movie average vote data set. So basically first, so the common query basically first we select the whole the column from our movie. When we run this, so we get the whole data set, and after that we filter out our score. So here we need a maximum score. So we again write the subquery maximum score from movie dataset. So if we run this, so basically we get the those movie the जिसका जो एवरेज वोट्स है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो जैसे हम इसको रन करेंगे, when we run this query, so we get the maximum score 9.3, और when we run this query तो हमें ये मूवी मिलेगी। बट हमें वो मूवी चाहिए the basically the average votes of the movie is greater than to the whole movie average data average votes, जिसका जो एवरेज वोट है पूरे डेटा सेट की जो मूवी का एवरेज वोट से ज्यादा होना चाहिए। So we again write the sub query, nested sub query. Okay. So we are write the query inside a sub query where votes greater than to. Now here we again specify the one sub query. It's called a nested sub query. मतलब in query inside a query, inside again query. Response from movie dataset. So basically, first we write the subquery and we get the condition, and we are also write again the subquery. So it's called a nested subquery. So जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये मूवी है, ड्रामा की है, द शंकर द क्या शिव शंकर, हाँ इस टाइप से मूवी है जिसका एवरेज वोट्स
जो हमारे मूवी के सारे डेटाबेस के डेटा के एवरेज वोट से ज्यादा है, वो जिसका मैक्सिमम स्कोर भी है। बेसिकली हमने यहाँ पर दो कंडीशन लगी। फर्स्ट, हमें सबसे पहले एवरेज वोट से भी ज्यादा वाली मूवी चाहिए थी, जिनको एवरेज वोट से ज्यादा मिला है वोट। उसके बाद उसका मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए। तो जैसे हम इसको इंडिविजुअल रन करेंगे तो हम एक वी गेट द एवरेज वोट्स लाइक 56,000। ओके, और जैसे हम इस दो सब क्वेरी को भी अगर हम रन करेंगे, सो वी आल्सो गेट द रिजल्ट 9.3। and if we run this whole query, so basically we get the total number of column. Okay, so this is called the nested subquery inside a query. कुछ डाउट या कुछ? ठीक है, so जो हमारा सेल्स वाला जो select star from sales, ये हमारे पास जो मैंने आपको डेटा सेट दिया था, ये वाला डेटा सेट, बेसिकली हमें here we count the total product count करना है हमें। so here we use the subquery with the select statement। मैं आपको बताया था ना कि हम हमारी क्वेरी को सबके साथ यूज करते हैं। अभी हमने वेयर के साथ यूज करा, अब हम सिलेक्ट के साथ यूज करेंगे, इसी तरह हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमें हियर वी नीड टू काउंट द टोटल प्रोडक्ट। फर्स्ट सिलेक्ट एंड द कैटेगरी, select and we apply our relation function count. It is basically count the total number from sales table or from sales when group by we apply on the category. Basically we create a group on the category column, and we here we need to count the quantity like total number of product. The quantity of the all categories basically 40। ठीक है ना? So here यहाँ पर हमने select के साथ भी हमने यूज करना सीख लिया इसका। और यहाँ आप चाहते हो तो आप एलियास भी दे सकते थे, like क्या कहते हैं, total product। Here you get the total product। ठीक है, कलर का ये हमारा एग्जांपल, तीन हमने एग्जांपल कर लिए। ठीक है ना? And now we are moving on the multi-row subquery। बेसिकली मल्टी रो क्वेरी क्या होती है, जिसका जो सबक्वेरी का रिजल्ट रो बेस्ड फॉर्म में होता है। जैसे कि सिंपल कैटेगरी आएगी एंड द कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक फैशन होम बेस। ठीक है, सो बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द सबक्वेरी इज बेसिकली इन द रो मल्टी रो सबक्वेरी, मल्टी रो में आएगा जिसका हमारा। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम कौन सा ले सकते हैं, select star from sales। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक बना सकते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी है, जिसकी जो क्वांटिटी यहाँ पर हियर यू कैन सी दैट द क्वांटिटी ऑफ द per category, like the pen is basically 200 category, 1500 these types of। so here we need to find out the product with the maximum quantity। so
anyone guess how we write this? Uh, variable variable name. Yeah. Okay. Yeah, yeah. So this is a keyword of the SQL. So basically, it's completely depend on you. So where we use where you specify. So basically, if you specify the select after the name, so basically you can here find out you extract the name column. Okay. Yeah. ठीक है. हाँ, तो इसमें हाँ ठीक है ठीक है. ये तो हमें इसके लगे वापस रिजल्ट दे रहा है. हमें एक उसी क्वेरी ऐसा रिजल्ट सेट बनाना है जिसका रिजल्ट हमारा रो सब उसमें आए, रो में आए. जैसे वेट मिनट में इसमें से निकाल लेता हूँ मैं. हम्म, ये इसमें से हम एक फंक्शन बना लेते हैं. इसी में से बनाए मैंने एक क्वेरी. क्योंकि हमें वो सारी मूवी फाइंड आउट करनी है सारे एक्टर्स की जिसकी जो एवरेज रेटिंग है. ये हमारी कहाँ गई, हमारा स्कोर या रेटिंग is basically greater than to 8.5 and the votes is basically above 25,000. हमें वो सारे एक्टर्स की मूवी फाइंड आउट करनी है जिसकी जो एवरेज रेटिंग है वो 8.5 से अबव होना चाहिए एंड द एवरेज वोट द वोट्स इज बेसिकली ग्रेटर देन टू 25,000. ठीक है. तो इसमें कोई इसमें अपन कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया है? क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल रो मिलेंगे. तो एनीवन गेस आइडिया कि हम कैसे करेंगे? The result of the subquery is basically give the row multi-row column. Sorry, multi-column. We start from the movie, we get the data set. Now we हमें वो सारे एक्टर्स की मूवी फाइंड आउट करनी है जिनका the average score basically greater than 8.5, the and the votes is basically above 25,000. So we first give the condition. So query give the
hint how can you solve the query, any query. ठीक है, तो बेसिकली if you see the question, जैसे कि यहाँ पर कुछ कंडीशन लग रही है, सपोज यहाँ पर हमारी सपोज वी here we give the condition, basically the average score basically greater than to 8.5. So you also imagine the we are using the where clause because here we give the condition, and also here we have second also condition, the average votes is basically greater than 25,000. So you imagine it कि हमें यहाँ पर वेयर कंडीशन लगाना पड़ेगी, इसके साथ में हमें दो कंडीशन देना है जहाँ पर एवरेज स्कोर इज बेसिकली ग्रेटर देन टू 8.5 एंड द वोट्स इज बेसिकली 25,000. तो ऑल्सो इमेजिन कि हमने दो चीज तो सॉल्व कर लिए, ठीक है. अब उसके बाद हम उसको कैसे पुट कर सकते हैं, जब भी आप कोई मतलब अभी जब भी आप कोई क्वेरी सॉल्व करो तो सबसे इमेजिन पहले कर लिया करो कि हमें क्या क्या करना है उसमें. क्योंकि ये प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि सपोज मैं अगर यहाँ पर भी आपको बता के चल रहा हूँ, करा के चल रहा हूँ, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे. ठीक है. Anyone guess where we get the where condition? Arun, Vishwadeep. Yeah, maximum score and the votes is greater than 25,000. So हमें वो सारी एक्टर्स फाइंड आउट करना है जिनकी मूवीज की एवरेज जो उनकी जो मूवीज का स्कोर है वो 25 के ऊपर हो और द एवरेज वोट्स इज बेसिकली ग्रेटर देन टू 25,000. चलो ठीक है, अपन एक बात करते हैं. सो बेसिकली हम यहाँ पर पहले देते हैं हमारी सब क्वेरी. जस्ट वेट अ मिनट. हाँ, ठीक है. तो सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द our सब क्वेरी. वी हैव टू फाइंड द स्टार जिसकी जो मूवीज है एवरेज स्कोर इज बेसिकली 8.5 है ना. सो फ्रॉम our movies database where votes is greater 25,000. ठीक है, डन. ये हमने कर लिया है. इसको हम भी हमने एक कंडीशन दे दी है. अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन. किसके ऊपर किस फंक्शन किस कॉलम पे अप्लाई करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन. हमें वो सारे एक्टर्स की सारी मूवीज निकालनी है. हमें वो सारी मूवीज निकालनी एक्टर की जो उन्होंने मूवीज करके रखी है जिनका जो एवरेज वोट 8.5 से अबव है और 25,000 के ऊपर हो. तो हम ग्रुप बाय फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करेंगे. वेयर वी अप्लाई द ग्रुप बाय फंक्शन विच कॉलम. एनीवन गेस. So basically we have to apply the group by function on the star function because हमें stars जो हमारा यहाँ पर star है. So basically we see that. So the name of the star basically William Hurt. So basically the William Hurt is casting in the one more movie. So basically we apply the group by function on the star. ठीक है. तो हमें बेसिकली स्टार हर एक हीरो की हमें वो सारी मूवीज मिल जाएगी जो उसने करके रखी है, जो उसने करी है, जिसमें उसने कास्ट किया है. तो हम उसके ऊपर ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करेंगे. अब जैसे हम इसको रन करेंगे सो वी हैव टू फिल्टर आउट द स्टार नेम जिनका जो एवरेज वोट्स है 25,000 से ऊपर है. ठीक है. और ये हम चाहे तो वोट्स देख सकते हैं. ओ सॉरी, नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करके रखा है. ठीक है, इसके आगे भी नहीं होगा ना, नहीं होगा.
ठीक है, तो हमें वो सारे अभी सारे एक्टर्स मिल गए जिनकी जो मूवी का एवरेज वोट्स 25,000 अबव है। एंड हियर वी अप्लाई द स्कोर condition, basically is greater than to 8.5, so we give the having average score is greater than to 8 point, sorry, 8.5. so if we run this query तो हमें ये तीन एक्टर्स मिले जिनकी मूवीज को एवरेज वोट जो जिनकी मूवीज को वोट 25,000 से ऊपर मिले थे और द एवरेज स्कोर बेसिकली 8.5 अबव। ठीक है, अभी हमारी क्वेरी पूरी रन नहीं हुई है। अब हमें हमें वो हमें सारी चीज चाहिए उसके लिए। तो वेयर select star from movies where star in, so why we use the in operator, because the our subquery result is basically give the multi row column, here you can see that। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही कहा था जो हमारी सबक्वेरी साइंस गिव द डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट, द फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकंड वन इज बेसिकली मल्टी रो कॉलम, मल्टी कॉलम। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बेसिकली द होल टेबल, या वी कैन से द इन द टेबल कॉलम। So basically we get the result in that multi row। So here we match the where यहाँ पर हमें मैच कराना है हमें कॉलम से, तो हम करेंगे यहाँ पर स्टार, क्योंकि हमें स्टार कॉलम से मैच करना है, तो स्टार इन हमें यहाँ पर मैच कराना है। मैंने अपन ने ये ऑपरेटर करके रखा है पहले भी अपन ने, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर हमें मैच कराना है वेयर स्टार इन। तो बेसिकली हमारी ये क्वेरी क्या करेगी, बेसिकली दिस क्वेरी बेसिकली चेक द ईच रो एंड इज मैचिंग the star that are present in this subquery। ठीक है, इस सबक्वेरी के रिजल्ट को मैच करेगी हमारी ये सबक्वेरी। अगर स्टार अगर इस रिजल्ट का सेट का या इसमें जब हमारी रो बाय रो में ये रन होगा तो हर उसके पास जाएगा स्टार के पास और ये मैच करेगा कि इसका जो स्टार है वो हमारे सबक्वेरी के स्टार से मैच होता है कि नहीं होता है। अगर मैच हो रहा तो प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ही स्किप दैट। इफ यू रन दिस, जस्ट वेट अ मिनट, इट्स रनिंग, टेक अ टाइम, टेक अ टाइम। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि हर एक मूवी में जाके चेक कर रहा है स्टार इसकी जो सबक्वेरी वाली रिजल्ट्स के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो हमें सिर्फ इतनी ही मूवी मिली है और हियर वी सी द स्टार नेम जो हमने ऊपर निकाले थे, रॉबर्ट इस टाइप से, पता नहीं नाम भी उनके अजीब अजीब है। ठीक है, और हैविंग फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैविंग फंक्शन इफ वी अप्लाई द एग्रीगेशन फंक्शन ऑन द ग्रुप्स सो वी कैन अप्लाई ऑन द ग्रुप बाय फंक्शन। हमें हैविंग फंक्शन हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे डेटा ग्रुप्स में डिवाइडेड हो। If our dataset are making groups, so we have to apply the aggregation function with the help of having clause। क्या वो कोई लेफ्ट हो गया था? ठीक है, तो अब समझ में आया ना जो मैंने बताया फिर? इसमें किसी को डाउट? हाँ, इसमें अब हम हमारी एक बार सेल्स टेबल में भी हम एक बार इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे हमारा जो सेल्स टेबल है, सो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का प्राइस है इज हायर देन इन द फर्नीचर कैटेगरी। हमें वो सारी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जिसकी जो प्राइस है वो हायर होना चाहिए हमारी कहाँ गई हमारी, जस्ट वेट अ मिनट, हमारी फर्नीचर वाली कैटेगरी से उसका प्राइस हायर होना चाहिए। ठीक है ना, सो वी हैव टू फाइंड आउट दोस प्रोडक्ट जिनका जो प्राइस है फर्नीचर वाली का जो भी कैटेगरी है उससे अब होना चाहिए। सपोज जैसे कि 1500 5000 है, तो जो हमें वो सारी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना जिनका प्राइस इससे ज्यादा हो। तो हम सबसे पहले बेसिकली इसको नीचे लेके आए, हटा देते हैं इसको। अगेन किसी को कुछ आइडिया है
कि अपन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वी हैव टू फिल्टर आउट द कैटेगरी, बिकॉज हमें, एक बार मैं वापस क्वेरी को प्रेस कर देता हूँ। प्रोडक्ट प्राइस इज हायर देन द ऑल इन द फर्नीचर, सारे प्रोडक्ट फाइंड करें जिनकी एवरेज प्राइस या जिनकी प्राइस फर्नीचर से ज्यादा है। तो हमें सबसे पहले एक चीज यहाँ पर, एक चीज हमें क्या पता चल रही है कि हमको जो कैटेगरी है वो फर्नीचर देनी है। फ्रॉम सेल्स, हाँ सेल्स टेबल वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू हमें ये चीज सिंपल से मालूम पड़ेगी कि जो हमारी जो प्राइस है इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो हमने सिंपल से ये लिख दिया है, तो हमें एक प्राइस मिल जाएगा। सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम सेल्स वेयर द कैटेगरी इज बेसिकली फर्नीचर। तो हमें फर्नीचर की सारी प्राइस मिल गई है कि हमारा फर्नीचर हाईएस्ट 30,000 पे, 40,000 पे, 30,000। अब बट हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिनका प्राइस इससे ज्यादा होना चाहिए। सो व्हाट टू डू, वी अगेन select, again we need a product, okay, so हाँ प्रोडक्ट नेम है, कॉलम का नाम चेक करा था मैंने, प्रोडक्ट नेम, and again we also need a price from our sales, we get a condition, basically we have to filter out data based on this सब query, हम इस सब query के बेस पे हमें इस डेटा को फिल्टर करना है। अब हमें where प्राइस इज ग्रेटर देन, तो किसके अब होना चाहिए हमारा प्राइस, इसके प्राइस अब होना चाहिए, किसके प्राइस, जो हमारी फर्नीचर की कैटेगरी इस प्राइस अब होना चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया है, बेसिकली वी हैव टू अप्लाई, वी नीड द प्रोडक्ट नेम कॉलम इन द प्राइस कॉलम फ्रॉम आवर सेल्स टेबल वेयर द प्राइस इज ग्रेटर देन टू दिस। देखो अब यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर ही कैन सी दैट द रिजल्ट ऑफ द मैक्सिमम इज 40,000, ओके, सो वेयर we run this query, so हमें we have to find out the one product is called a laptop, the price of the basically like 55,000, so एक ऐसा प्रोडक्ट है लैपटॉप जिसकी जो एवरेज प्राइस इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बेसिकली करा क्या है, विद द हेल्प ऑफ द सब क्वेरी बेसिकली हमने फर्नीचर की सारी प्राइस निकाल ली है। उसके बाद हमने इसको मैच करा लिया, हमने किससे, हमारी जो भी होल और प्राइस से हमने मैच कराना है हमें, कि सारे प्रोडक्ट से मैच कराना कि इस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है हमारी इस सब क्वेरी वाली रिजल्ट की प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। तो अगेन लास्ट में हम ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया सिंपल फॉर्म में। जैसे हम इसको रन करेंगे सो वी गेट द एरर, ओके, यहाँ पर हमें एक चीज लगाना पड़ेगा, ऑल। ऑल लगाने से क्या करेगा, मैच कर जाएगा इसमें। देखो यहाँ पर हमने जैसे पूरी क्वेरी को रन किया तो हमारे पास एक लैपटॉप प्रोडक्ट है जो इसकी जो उसका प्राइस है 55,000 से। बाकी अगर हम हमारी जैसे प्राइस चेक करेंगे हमारे लैपटॉप के अलावा 55,000 के, तो बाकी स्पोर्ट्स फोन की 25,000 आ रही है, शूज की 20,000 आ रही है और स्पीकर की 5,000 आ रही है। बिकॉज और हमने जब इसको रन करा था हमारी फर्नीचर वाली को कैटेगरी को, तो हमारे जो प्राइस थी मैक्सिमम प्राइस कितनी थी 40,000, और सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट इन आवर टेबल द बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली 55,000, इट्स कॉल्ड लैपटॉप। सिर्फ लैपटॉप ही जिसका जो प्राइस है वो 40,000 से ऊपर है, तो वी गेट दिस। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो वेयर प्राइस इन,
अच्छा ये तो बिलो वाली सब चीज देगा, इसको यूज करना पड़ेगा। जस्ट वेट अ मिनट, हाँ ऑल करना पड़ेगा इसमें, हाँ क्योंकि हमें सबसे मैच करानी है इसमें। ठीक है, तो एक लैपटॉप ही ऐसा है। इसमें कुछ डाउट? ठीक है ना। अब हम जाते हैं मल्टी मल्टी कॉलम सब क्वेरी पे। ठीक है, इसके मैं प्रैक्टिस आज दे दूंगा, तो आप कल ले लेंगे सेशन या प्रैक्टिस करोगे आप इसकी? You do practice. Okay. Okay. I don't have a problem. So we can also take the session tomorrow. But if you need so first time if you have to make a plan, take a session. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, सो वी डू द सेशन टुमारो। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? अब इसमें हमें टेबल, जब हमारा हियर वी डू द टेबल सब क्वेरी या मल्टी कॉलम मल्टी रो क्वेरी, जिसका रिजल्ट हमारे जब सब क्वेरी का रिजल्ट है वो मल्टी रो या मल्टी कॉलम के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर हमारी कौन सी क्वेरी बन सकती है? ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करनी है, लाइक फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी ऑफ ईच ईयर। हमें हर ईयर की सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी चाहिए, हर एक ईयर की। लाइक हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स की मूवी है, 1980 की, 1981 की है, 1982 की। तो हमें हर एक ईयर की, ईच ईयर वी हैव टू फाइंड आउट द ईच प्रॉफिटेबल मूवी इन द ईच ईयर। ठीक है, again we supposed to select start from। देखो ये बेसिकली सिंपल सी क्वेरी है, सब में कॉमन क्वेरी है। select star from movie, so basically we select the all the columns। ठीक है, अब हमें मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी फाइंड आउट करनी है हर एक साल की। या सपोज इफ यू आर जैसे कि अगर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में अगर आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हमें हर एक ईयर की या फिर मतलब कि हर एक ईयर की मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी जिसने सबसे ज्यादा कमाया है या जिसने सबसे ज्यादा इनकम की है, वो मूवी फाइंड आउट करके बताओ हर एक ईयर में। Yeah. So first we basically uh, divide the budget into gross, so we get the profit. We get the profit. So basically, gross is basically total, including budget and the profit. So if we divide the gross minus budget, so we get the profit. Okay. ठीक है ना? तो सबसे पहले we use the where condition and instead of सबसे पहले इससे पहले हमें एक चीज और फाइंड आउट करना है, हमको हमारी सब क्वेरी लिखाना है। So हमें select year. So Arun, sometimes you are asking like the SQL basically show the keyword. So basically the SQL is also defined this year as a keyword. Okay. Okay. So here we write the year after the select statement. So basically he also noted to basically the column name that he need to
in the table. Yeah, and also we need the maximum. क्या निकालना हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है हर एक मूवी की. तो here we what we do, we basically do the gross minus budget. ठीक है, so basically we get the profit या profit from our movie data set. And what we do after that, anyone guess? Vishwadeep or Arun, any guess? Then sort the year. Basically we group by the year. You know, so we group by the year. जिसे इसको रन करेंगे, so basically ये हमारे पास प्रॉफिट्स आ गया और एक हर एक मूवी का आ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट आया है. But here we don't know what is the movie name and what we do. ठीक है. अब now what we do basically, here we match the two columns. Now we get the result of the subcategory basically in the table form. Here the multi-row and here the two column. ठीक है, so basically it's called the multi-row and multi-column result of the subquery. Okay. ठीक है, तो हम यहाँ पर हम मैच करेंगे हमारे सबक्वेरी को. अभी हमें यहाँ पर मैच कराना है, टू कॉलम्स मैच कराना है, क्योंकि द रिजल्ट ऑफ आवर सबक्वेरी बेसिकली ईयर एंड द प्रॉफिट. सो व्हाट वी डू, हियर वी राइट द ईयर and the gross minus budget in. अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमें मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी मिल जाएगी हर एक ईयर की. देखो यहाँ पर हमारा ईयर यूनिक है. जैसे 2001 में हैरी पॉटर नाम से मूवी थी, जो एडवेंचर मूवी थी, जो सबसे प्रॉफिटेबल मूवी थी. 2000 मिशन इम्पॉसिबल 2 मूवी थी. 1999 की स्टार वॉर्स मूवी थी, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी थी. सो दिस क्वेश्चन रिलेटेड इंटरव्यू थी. ये इंटरव्यू के पर्पस से मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ. बाकी मेरा मोटिव ये था कि आपको टाइप्स बताना, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप से. बट मैं प्रैक्टिसेस भी हाथ करवा रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो. ये हो गया हमारा. एक और स्टार्ट करते हैं. कल हमारा सिर्फ एक ही बचेगा, कोरिलेटेड सबक्वेरी वाला. हाँ, एक और है. अभी हमें करना है फाइंड द हाईएस्ट रेटेड मूवी ऑफ ईच ईयर की जगह क्या कर सकते हैं हम, फाइंड द हाईएस्ट रेटेड मूवी ऑफ. हम यहाँ पर हम कर सकते हैं ईयर में हमारा जो ग्रुप बाय फंक्शन हो गया ना. ठीक है, अब हम जेनर में करेंगे. अब इसके जॉनर में करेंगे. ठीक है, जॉनर जो हमारे इसका वर्ड्स भी कर देते हैं इस बार. वर्ड्स भी हो जाता है इस बार. ठीक है, सो हियर वी आल्सो इंक्लूड द वर्ड्स. कट ऑफ ऑफ 25. सो हमें वो सारी हाईएस्ट रेटेड मूवी निकालनी है हर एक जॉनर की, जिसका जो मूवी कट ऑफ है वो 25,000 या उसके अबव है. कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है.
अब इसको करेंगे कैसे, आगे कुछ आइडिया? ठीक है, हमारा वही वी गेट द ऑल द मूवीज एंड हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बेसिकली हाईएस्ट रेटेड मूवी होना चाहिए। अब इतना करने के बाद सबसे पहले हमारी जो मेन क्वेरीज को बंद करो, उसके बाद हमें हमारी सब क्वेरी लिखेंगे। सिलेक्ट, यहाँ पर हमने क्या लिखा, जॉनर लिखा है, जॉनर चाहिए। उसके बाद उसके उसके साथ में हमें क्या चाहिए, उसका मैक्सिमम वोट होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट रेटेड मूवी निकालना है जिसको सबसे ज्यादा स्कोर मिला हुआ है। मैक्सिमम स्कोर एंड फ्रॉम मूवी टेबल, ठीक है। अब जिसका वोट कट ऑफ कितना होना चाहिए, अबाउट 25, वेयर votes is filtered into 25,000 and after that what we do, ये तो हमने अभी करके रखा, थोड़ी देर पहले किया था। after that any guess, हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जस्ट हमने ऊपर किया है हर एक ईयर में। हेलो विश्वदीप, एनी गेस, हमें हर एक जॉनर की मूवी निकालनी है। ठीक है, so here we apply the group by function on the genre, ठीक है। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमें हमारी टेबल मिल जाएगी। ड्रामा में मैक्सिमम स्कोर 98, 9.3 मिला हुआ है, एडवेंचर में 8.5 मिला है, और जिनके वोट 25,000 के अबव है, ठीक है। बट हियर वी नीड ऑल द कॉलम्स, all the movie information. So what we do, so basically we use the where, we give the parenthesis, and here what we mesh is basically where we need to mesh the two columns. First is the genre and second one is the score in, and we write this subquery. ठीक है, ये हो गया हमारी सबक्वेरी। अब बेसिकली हम इसको जब रन करेंगे, रनिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट सेट मिल गया हमें, ठीक है। ये स्टेप से आप मूवी करोगे। बट सपोज जैसे कि हमने जब ऊपर हमने किया है, कहाँ पर है हमारा, हाँ, जब हमें स्केलर वैल्यू या स्केलर सबक्वेरी जब यूज करते थे, वो सबक्वेरी, द रिजल्ट ऑफ बेसिकली सबक्वेरी बेसिकली इन द स्केलर फॉर्म। सो व्हाट वी डू, जब हमें सबक्वेरी का रिजल्ट स्केलर फॉर्म में सिंगल वैल्यू मिलता था, तब हम इज इक्वल टू लगाते थे, राइट। सो बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द सबक्वेरी इन द इज अ सिंगल या स्केलर वैल्यू, ओनली वन वैल्यू। बट एंड आफ्टर दैट वी यूज द मल्टी रो सबक्वेरी। अब इसमें हम जब इसमें हम यूज करते थे तो हमारा रिजल्ट क्या आता था, कॉलम में आता था, मल्टी रो में आता था, ठीक है, सॉरी, मल्टी रो में आता था। तो व्हाट वी डू, हम यहाँ पर करते थे इन, क्योंकि हमें मैच कराना है हर एक जॉनर को। बट इन द मल्टी रो एंड मल्टी कॉलम सब क्वेरी में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर वेयर वी मैच द टू कॉलम्स एंड वी आल्सो यूज द इन स्टेप इन क्लॉज टू मैच दिस टू कॉलम्स द रिजल्ट विद द दिस टू कॉलम्स, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस सब क्वेरी के रिजल्ट्स को मैच करते हैं हम, जहां पर हम दो कॉलम्स को देते हैं, ऑल्सो यूज द इन क्लॉज टू मैच द रिजल्ट ऑफ द दिस सब क्वेरी। तो ये मेक श्योर रखना कि इन और इज इक्वल टू कहाँ यूज करते हैं।
इजिकल टू हम वहां यूज करेंगे इजिकल टू जब हमें सिंगल वैल्यू या सिंगल स्केलर वैल्यू मिल रही है जब हमारी सब क्वेरी का। ठीक है, ये मेक श्योर रखना। ठीक है, अब हमारा ठीक है, एक एक मूवी हमें निकालते हैं और ये हमने किसका था, हैज टू मूव इनटू ईच ईयर। ठीक है ना, अब हम कहाँ गया हमारी सेट स्टार फ्रॉम मूवीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइंड द हाइस्ट ग्रोसिंग मूवीज ऑफ द टॉप 5 एक्टर, डायरेक्टर, कॉम्बो इन टर्म ऑफ टोटल इनकम। समझ में आया क्वेश्चन, क्या बताऊं मैं? हमें वो सारी की सारी मूवीज फाइंड आउट करनी है, वो सारी टॉप 5 निकालना हमें एक्टर और डायरेक्टर की कॉम्बिनेशन को, जहां पर एक्टर एंड द डायरेक्टर इज बेसिकली वर्किंग टुगेदर। ठीक है, इन द टर्म ऑफ, किस टर्म में निकालना है हमें, टोटल ग्रोसिंग इनकम में। वो सारी मूवीज फाइंड आउट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाया है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर एंड डायरेक्टर, ओनली टॉप 5 निकालना है हमें। तो बेसिकली हमारा रिजल्ट सेट किस किस फॉर्म में आएगा, जैसे कि पहले आएगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट स्टार और फिर आएगा डायरेक्टर और आएगा जो भी उसका ग्रोस या इस फॉर्म में। ठीक है, क्या हो रहा है, अननोन स्टार, ये नाम से था ना कि स्टार नाम से, हाँ जो भी है मतलब, नहीं नहीं ये बता रहा था अननोन कॉलम स्टार, सिलेक्ट स्टार सही तो लिखा है मैंने, स्टार डायरेक्टर डाई, अच्छा ठीक है, ये तब भी बता रहा हूँ कॉलम स्टार इन द फील्ड लिस्ट। अच्छा मैं सेल्स की जगह मूवी लगाना था, सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा रिजल्ट है इस फॉर्म में दिखना चाहिए, बट यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, बट हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट लगाना है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार एंड डायरेक्टर, जहां पर स्टार और डायरेक्टर ने साथ में काम करके रखा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्टार और डायरेक्टर के कॉम्बिनेशन को, वी हैव टू क्रिएट द कॉम्बिनेशन विद द स्टार एंड डायरेक्टर, देयर देयर दे वर्क टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे सबसे इसको टोटल ग्रॉस इनकम में निकालना है। इसमें हमें लिमिट क्लोज एंड इसमें कुछ आइडिया है कि अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा मुझे भी समझ लग रहा है। हम्म,
ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं, जो होगा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टार निकालना है, स्टार, उसके बाद डायरेक्टर को निकालना है, उसके बाद हमें क्या करना है, टॉप 5 निकालना है। तो नहीं, हाँ, मैक्सिमम निकालना है इन अ टर्म ऑफ ग्रोस फ्रॉम our movie column, movie table, and here we group by. अब ग्रुप बाय किस पे करेंगे, थोड़ा आप भी बताओ। किस पर हम अप्लाई करेंगे, हाँ, किस पर, ठीक है, आगे और, हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकालना है, हाँ, एंड ऑर्डर बाय लगाना पड़ेगा, क्यों, हमें जो सम है, जो हमारा, जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विद द लिमिट ऑफ द टॉप 5 चाहिए। तो इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगी, टॉप 5 डायरेक्टर क्या वो मिल जाएगा। बट ये हमारी क्वालिटी सब क्वेरी, हमारी सब क्वेरी नहीं हुई, हमें सब क्वेरी फॉर्म में निकलना है ऐसे। तो ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया है। एक मिनट, हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर स्टार डायरेक्टर एंड ग्रॉस इन। ये शायद तक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि क्या है ना, लिमिट क्लॉज इसमें वर्क नहीं करेगा। देखा, द वर्जन ऑफ द MySQL does not support the limit clause in the subquery, in some subquery। मुझे मालूम था, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लिया था और हमें निकालना था, इसलिए लिमिट क्लॉज। ये ध्यान रखना कि जो हमारा लिमिट क्लॉज है वो कभी वर्क नहीं करता है, क्योंकि मुझे पहले डाउट था, इसलिए मैं सोच रहा था मैं। द लिमिट क्लॉज आर नॉट वर्क इन द सबक्वेरी। तो यहाँ पर एनी अल्टरनेट आइडिया, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जो हम कल या परसों क्लास में यूज करेंगे। और यहाँ पर हम बनाएंगे विथ टॉप डूअर्स। ठीक है, जब भी हम अभी बता देता हूँ मैं, जब भी हमको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्रिएट करना हो, सो बेसिकली दिस इज अ टेम्पररी टेबल। सो ये जब तक ही रहेगी जब तक हमारी क्वेरी रन होगी। तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं, विथ क्लॉज के साथ करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं विथ कीवर्ड एंड वी गिव द कॉमन टेबल एक्सप्रेशन नेम विथ टॉप डूअर्स और गिव द एलियास एंड गिव द पैरेंथेसिस लाइक दैट। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब इसको हमें यूज करना है हमारी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को। तो क्या करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर, जो हमने ऊपर बनाया था,
where star and director and grows in select star from grows। क्या लगता है क्या रिजल्ट देगा ये? देखो ये हमें हमारे टॉप 5 मिल गए विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी, मल्टी रो मल्टी कॉलम सब क्वेरी थ्रू। तो हमने बेसिकली यहाँ पर यूज किया हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारा डायरेक्ट हमारा सब क्वेरी से लिमिट वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि लिमिट क्लॉज बेसिकली इज नॉट वर्किंग इन द सब क्वेरी। ठीक है, तो हमने क्या करा था, एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक टेम्पररी रिजल्ट क्रिएट करता है इन द टेबल फॉर्म में, और ये तब तक ही रिजल्ट रहेगा जब तक कि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूशन होगी। जैसे हमारी क्वेरी हटेगी, दूसरी क्वेरी हम रन करेंगे तो बेसिकली ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमने क्या करा, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करा है विद द नेम ऑफ टॉप डूअर्स एंड वी गिव द एलियास, क्योंकि यहाँ पर हियर वी नीड टू स्पेसिफाई द एलियास ऑफ आवर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन नेम एंड वी राइट द सम क्वेरी। सो बेसिकली ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज भी किस लिए होता है, हमारी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को एक सिंपल फॉर्म में शो करने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अ मूवी वेयर द स्टार डायरेक्टर और ग्रोस, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि हमें ये चीज तीनों चीज चाहिए, और हमें मैच करा हमने क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉप डूअर्स। अब जो हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है ये वर्क करेगा, अभी ऐसे टेम्पररी टेबल के रूप में काम करेगा यहाँ पर। तो हमने क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉप डूअर्स इस टाइप से करा, क्योंकि जो हमारा टॉप डूअर्स है, जो हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, ये भी टेम्पररी टेबल है, तो हम इसको वी कैन यूज दैट सेट स्टार फ्रॉम एज अ टेबल। ठीक है, तो हमने इसको जैसे हमारा जो रिजल्ट है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो बेसिकली हमें एक एरर देगा, क्योंकि हमें इसको ये जब तक भी चलता है जब तक हमारा क्वेरी एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे अगर मैं इसको इंडिविजुअल रन करूंगा, बेसिकली थ्रो द एरर टेबल डीबी टॉप डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो ये जब तक भी दिख रहा है जब तक हमारी क्वेरी या क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। अभी इस टाइप से क्वेरी इस टाइप से आप कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वेरी लिखना पड़ेगी जो आपको उसमें से निकालना है। तो अपन बेसिकली कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंपल फॉर्म में दिखा सकते हैं हम, जैसे कि हमारा यहाँ पर लिमिट क्लोज यूज नहीं कर पा रहे थे हम, सो दैट्स व्हाई वी यूज द कॉमन टेबल एक्सप्रेशन टू सिंप्लीफाई द आवर क्वेरी। ठीक है, Yeah. कोई डाउट तो नहीं? No. ठीक है, सो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है।